Okay, all of you, first of all, switch on your camera so that मैं आपसे one to one interact हो पाऊँ, because today I want to clear your doubts regarding your UT1 chapters. Clear? So first of all, this boy Shlok Kumar Singh. Yes, Shlok, what's your problem? आपको क्या problem है chapter से related UT1? Shlok. Shlok Kumar Singh, you have any problem regarding chapter UT1 chapter? Am I audible? Shlok Kumar Singh? Okay, you just mute. Priyanshu Kumar? Priyanshu Kumar? Yes. Priyanshu? Yes, ma'am. Yes, what's your problem, Priyanshu? Priyanshu Kumar, is any problem to you? Just mute yourself. Yash Kumar? Yash? Any problem? Okay, then I have told na, hands down. If you have no any problem, you are wasting my time. Shraddha? Priyanshu, hands down. Shraddha? Yes. What's the problem? Shraddha, I am not getting you. Speak clearly. हाँ, बिल्कुल समझा सकते हैं. But अभी आप श्रद्धा कुछ कह रही है. I am not getting very clear. Yes, who will make me clear? गरिमा, क्या बता सकते हो श्रद्धा क्या कह रही है? What's the doubt? Which word meaning? Pronunciation of Prejudice. prejudice. Okay. Prejudice means to prejudgment. Prejudice means prejudgment about someone without knowing. Listen. Shraddha, listen. Prejudice means prejudgment about someone without knowing a lot about him. Clear? For the example, we normally say that village people are ignorant. Village people are illiterate. Urban people has very good living standard. We already used to say this type of statements. What is this? This is prejudice. Because you say that कि, urban people have no time for their family. So this it means that you don't know about these people very much. फिर भी आप उनके बारे में कुछ भी नेगेटिवली बोलते हैं. This is prejudice. Okay, Shraddha, any other question? मैम आपने बोला था कि 5 PM पे ओपन करोगी कॉपी, इसलिए मैम आपने ओपन ही नहीं किया ग्रुप. हाँ जी बेटा. Okay. So today I will open the group for your notebook submission of all 3 SST at 5 PM. Okay. मैंने आपको कहा था कि I will give you time 1 or 2 days to complete your notebook work. तो आज मैं today I will open your group. Okay. Next, rest of the students mute your mic. Okay. हाँ. Okay. Good. Manas, what's your problem? Ma'am, is there any lower caste and upper caste in other religion? बेटा in every religion, ठीक है, जो सोसाइटी होती है ना, उनमें कुछ ना कुछ अपर एंड लोअर को लेके बात होती है. जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो
क्रिश्चियनिटी में भी वो लोग कहते हैं कि तुम ये रोमन कैथोलिक चर्च हो, वहाँ से हो, तुम यहाँ से हो, तुम ये क्रिश्चियनिटी हो, वो लोग भी अपने को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुस्लिम है, तो मुस्लिम में शिया और सुन्नी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये लोग अपने आप को उसमें ही अपने ही ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हिंदुइज्म में है तो अभी भी कुछ जगहों पे देखोगे बहुत कम आपको मिलेगा अपर एंड लोअर का कॉन्सेप्ट, बहुत कम मिलेगा, गाँव में मिलेगा। अब तो कोई नहीं करता है क्योंकि अनटचेबिलिटी बैन हो गई है ना, तो थोड़ी थोड़ी हर जगह मिलेगी। रुको, थोड़ी थोड़ी तो आपको हर जगह मिलेगी, कहीं भी कंप्लीटली हर चीज़ बंद नहीं होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, पर हाँ उससे सोसाइटी पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी अफेक्टेड हो रही है, तब वहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है। क्लियर मानस? आरिफ, एनी प्रॉब्लम? आरिफ, लॉन्गिट्यूड्स यू आर आस्किंग, ओके आई विल मेक यू क्लियर longitude। मैं आपका ये पॉइंट यहाँ लिख लेती हूँ, लॉन्गिट्यूड्स मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है लॉन्गिट्यूड। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? आरिफ के बाद सोहनोटा, सोहनोटा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सोहनोटा, you are not present. Sohanota, are you not? You are present here. What's your problem? Yes, no problem. Just hands down. Chavi Prasad. Chavi Prasad. Yes, ma'am. Yes, beta. Ma'am, what is left attitude? Please tell me. And ma'am, what is the meaning of constellation? Constellation. Who will reply? It's longitude, ma'am. Please tell. Okay. Constellation. Jayashika, answer. What is constellation? Jayashika. Yes. Together with form of patterns. Okay, very good. Jessica, very good. Group of stars that makes a pattern is known as constellation. Shlok Kumar Singh, can you give example of constellation? Can you give example? Excuse me, ma'am. Shlok, can you give example of constellation? Can I? Sir, I have a doubt, ma'am. Shlok, I am so much time. I am asking question. Student, listen to me first. Ishita, give example of constellation. Ma'am, the examples of constellation, ma'am, are ma'am 7 star and Big Deer. हाँ, ग्रेट बियर, 7 स्टार और 3 स्टार जो एक पैटर्न बनाते हैं, एक 5 स्टार भी बनता है, 5 स्टार भी बनता है, 5 स्टार्स की एक ग्रुप बनती है। हाँ, पर मेनली यस यस यस, उर्सा मेजर सप्तऋषि। Okay, okay, Chavi, I will make you clear about latitudes too. Sohan, mute yourself. No, no, no. I have already given you time. I am not going to repeat. Okay, okay. Okay, Sohan, wait for some time. You will get your time. अभी रुकिए. Ansh Mishra, any problem? Ansh? Yes, ma'am. Yes. Sohan, mute mic. Mute your mic, Sohan. Yes, Ansh, what's the problem? Ansh, repeat your question. Ansh, repeat your question.
any place on globe, है ना, on globe with the help of latitudes and longitudes. Okay, I will reply you. Okay, so Sohan, I said mute yourself. Aditi Singh, any problem? I think this time is not okay. Aditi Singh, what's your problem? Aditi, am I audible to you? Aditi, am I audible to you? Arihan Singh? Yes, ma'am. Yes, Arihan. हाँ. And what is celestial body? Celestial body. Okay, Arush Patil, you explain what is celestial body. Arush, explain what is celestial body. Ma'am, celestial bodies are the bodies which shines and produce their own heat and light, like sun and moon. Okay. Darshan, can you explain what is celestial body? Abhinav, sit properly. Abhinav Singh. Yes. Darshan, explain what is celestial body. Arush, good. But Darshan, आप थोड़ा और अच्छे से explain करो. Ma'am, celestial bodies are bodies that are made from words. Bhumika, what is celestial body? Ma'am, Bhumika, what is celestial body? Tuli Singh, sit properly. Yes. Sit properly. Where is your chair? Where is your chair? Answer. Celestial bodies are the bodies that give their own heat and light to the planets and to satellites. Tuli Singh, ये celestial body की definition है. Is this celestial body definition? Stupid girl. Danish, explain. Where is your dress, Danish? Celestial bodies are those bodies. You will not explain. No. Danish, you will not explain because you are not in proper uniform. This is not the way. Abhinav Singh, all time you are yawning, huh? Explain celestial body. Who? Shlok, nahi, you will not. Okay, so my celestial bodies are those bodies which are made of gases and drops and that shine in the sky.
ओके, आप उनको देख सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि आप सारे सेलेस्टियल बॉडीज को देख सकते हो। क्लियर? आप और बाकी को देखना है तो उसके लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब जैसे सन है, मून है, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि एवरी प्लैनेट्स हैज देयर सैटेलाइट्स, बहुत सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके पास सैटेलाइट्स हैं। क्लियर? जैसे अर्थ है तो अर्थ की अपनी सैटेलाइट मून है, वैसे ही प्लैनेट्स की भी अपनी सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, दिस ऑल आर द सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, ठीक है। शिवांग, एनी प्रॉब्लम यू हैव? शिवांग? No, ma'am. Mute. Okay. Now I am giving chance to Sohan Ota. He has asked some questions, but listen, this boy. आपको repeatedly मैंने instruct कर रही हूँ यहाँ से, और फिर भी ना ही आपका hands down हो रहा है, ना ही आपका mic mute होता है। Discipline के मामले में I will give you 0. In discipline, you will get 0 mark in my subject. Remember. Now, yes, tell your problem, Sohan. Excuse me, madam, my question is that there is a give one word for the following question. Generalizing people of particular group of mates group into an image. Yes. So, And the possible utilization of a person's effort for individual gain. Ma'am, what will be the given one word answer? civics. This is civics question, chapter number 2, diversity and discrimination, right? Yes, ma'am. Okay, very good question you have asked here कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको बताना है, एवरीवन लिसन, कि वो जो स्टेटमेंट है वो किस तरह का स्टेटमेंट है, राइट सुमन? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, keep one word answer देना है. okay, so give me one time because I am just downloading this PDF. मैं अभी आपको ये PDF शेयर करती हूँ तो मुझे क्लियर होगा कि क्वेश्चन जनरली कौन सा है, क्योंकि हाँ बेटा 1 मिनट रुकना आप सारे बच्चे, आप आरिफ वेट, ठीक है? पीयूष कुमार सिट प्रॉपर्ली, पीयूष कुमार, ये सारे बच्चे क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली। नो, ऐसे नहीं होगा, एकदम सीधे बैठो, एकदम सीधे स्ट्रेट। बेटा आपकी जो बैकबोन है अगर उसको झुका के रखोगे तो हमेशा झुके हुए रहोगे। 6th में हो ना, बैकबोन हमेशा सीधी रखा करो। क्लियर? चलो तो मैं आंसर करती हूँ। हाँ, यस बेटा, वेट फॉर अ मिनट, मैं अभी PDF दिखा रही हूँ आपको। डाउनलोड्स, civics. Is this question number 1? Ma'am, there is a question utilization of person's effort for individual gain. We have to give one word answer. Utilization of A person's effort for individual gain. बेटा चैप्टर 2 एक्सरसाइजेस की आप बात कर रहे हो ना सोहन? तो मैम एक वर्कबुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है इसी चैप्टर का। मैम हमें एक वन वर्ड आंसर देना है, यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन्स एफर्ट फॉर इंडिविजुअल गेन। Utilization of constant efforts of individual gains.
Yes, ma'am. मैं अब concerts efforts individual gain. Okay, can you tell page number? मैम ये एक वर्कबुक है मैम, इसमें कोई पेज नंबर दे रखी नहीं है। अच्छा ठीक है ओके ओके एनी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 कैन यू रिप्लाई दिस कि सोहन जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसका आंसर कर सकते हो क्लास 6 एनी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 Read the question. Ma'am, please repeat the question. Utilization of the cursors efforts for individual gain. मैम ग्राफ कैसे करना है? बेटा ग्राफ एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सो आई एम अनएबल टू आंसर यू मैम आप कार्डबोर्ड में क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा मैं ठीक है मैं सोहन लिख लूंगी मैं क्वेश्चन एक काम करते हैं अभी 2-3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे हम लोग जरा डिस्कस कर ले 2-3 बच्चों ने पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है फर्स्ट क्वेश्चन था आपका लैटिट्यूड्स नो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ठीक है तो जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ सारे बच्चे म्यूट कर लो अब देखो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में तो जब हम लॉन्गिट्यूड समझते हैं तो हमेशा याद रखना ये इमेजिनरी लाइन है ठीक है एक इमेजिनरी लाइन है और ये लाइन जैसे ये हमारा अर्थ है क्लियर अर्थ के ऊपर जो ये वाली लाइन होती है दिस इज योर लॉन्गिट्यूड दिस इज योर लॉन्गिट्यूड्स क्लियर तो लॉन्गिट्यूड्स आर लॉन्ग इमेजिनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड्स आर और ये लाइन हमेशा याद रखना इमेजिनरी लाइन लॉन्ग है ना लंबी लाइन है तो ये लॉन्ग लाइंस हो गई क्लियर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करती है ठीक है तो ये हो गया नंबर 2 पॉइंट क्या होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करती है थर्ड पॉइंट क्या बनाओगे कि जो एक 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है मान लो ये मेरा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है बीच वाली लाइन जो है ये मेरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है तो इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लाइन के एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और दूसरी तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है क्लियर जिस तरह से एक 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है डिवाइड कर देता है वैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स divide earth into 2 hemisphere one is your eastern hemisphere and other is your western hemisphere ठीक है तो ये भी लिख सकते हो ना फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्लियर हो गया एक चीज और इम्पोर्टेंट है लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प ले करके हमेशा आप टाइम निकाल सकते हो जैसे आप टाइम निकाल सकते हो आप लोकेशन निकाल सकते हो तो इस लाइन इस लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस क्या है नंबर 5 पॉइंट क्या लिख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स वी कैन गेट द टाइम एंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स you get what time and location अगर मैं कहती हूँ कि बेटा 98 डिग्री 65 मिनट ईस्ट एंड 64 डिग्री 35 मिनट ईस्ट इस जोन में आप मुझे कोई कंट्री दिखाओ तो सबसे पहले जब ये 0 डिग्री है और मैं ईस्ट की बात करती हूँ तो आप सीधे इस वाले जोन में आ जाओगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाओगे क्लियर तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखो कि 98 डिग्री कहाँ है ठीक है तो मान लो कि ये 0 डिग्री है और इधर 180 डिग्री बनेगा इधर 180 डिग्री बनेगा तभी तो ये 360 बनेगा ना एक सर्कल का फुल मेजरमेंट 360 का होता है तो 98 डिग्री मान लो यहाँ पे आ जाता है 98 डिग्री और 64 डिग्री मान लो यहाँ पे आ जाता है तो देखो कि इस लॉन्गिट्यूड में ये तो ईस्टर्न का बता दिया तो बेटा आपको ये तो क्लियर हुआ कि इस जगह पे ये पूरा एरिया है मान लो
लेकिन आपको लैटिट्यूड्स भी पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे कह दी कि लैटिट्यूड्स में आप ले लो कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो जैसे ही मैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलती हूँ ना बेटा, तो नॉर्थ लैटिट्यूड अब एक लाइन की जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्दर्न हो गया। नॉर्दर्न में 23.5 देखो तो कहाँ पे मिल रहा है, और ये देखो 64 डिग्री, इन दोनों डिग्री को देख लो प्लस लैटिट्यूड्स वाली लाइन देख लो, तो जो जगह मिलेगी इसे मालूम चल जाएगा कि ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड में इस जगह की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको ग्रिड जब बता रही थी तो मैंने आपको बताया था ना कि आप कैसे लोकेशन ढूंढोगे। बेटा आपको समझ में आ रहा है क्लास आपको समझ में आ रहा है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू इज नॉट गेटिंग दिस टॉपिक? कितने बच्चों की टॉपिक समझ में नहीं आया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? ऑनेस्टली हाथ खड़े करो, क्योंकि बेटा दिस इज द बेस ऑफ योर चैप्टर। प्रतीक समझ में नहीं आया आपको? प्रतीक आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, क्लास ली है जब मैं आपको बता रही थी, जब मैं क्लास में ले रही थी, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? बेटा सिर्फ वही बच्चे हाथ खड़े करो ना, आप सारे करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम है। ये शिक्षिता Then how can we find time? हाउ कैन यू फाइंड टाइम? ओके ठीक है, तो चलो हम टाइम को बताते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे ये तो लोकेशन क्लियर हो गई ना कि अर्थ पे कहाँ दिखाओगे। अब जैसे मान लो कि ये आपका ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे मान लो कोई एक लोकेशन है, कोई एक लोकेशन है, इस जगह पे कोई एक लोकेशन है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 डिग्री से लेकर के मान लो कि ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है ये 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे है कुछ नॉर्थ लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड ना लेके ये जो यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि 0 डिग्री से आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि 24 आवर्स में अर्थ कितना रोटेट कर लेती है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में अर्थ कितना रोटेट करेगी? 360 अपॉन में 24। मैंने आपको ये तरीका बताया था ना। हाँ, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 30, यानी कि 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में अर्थ रोटेट करती है 15 डिग्री। तो आपको पता है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसके ईस्टर्न में जितनी भी कंट्रीज आएंगी वो सारे देश का टाइम आगे चलेगा, आगे चलता है, क्योंकि ईस्ट में सन हमेशा ईस्ट में ही निकलते हैं। तो यहाँ जितने भी देश होंगे वहाँ का टाइम आगे चलेगा, इतने सारे एरियाज में, इधर के एरियाज में, ठीक है। अब देखो कि 1 घंटा में 15 डिग्री चल रही है, और मान लो कि यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे आ रहा है 15 डिग्री है। बेटा आप ध्यान से समझ लेना, बताती हूँ, देखो रुको ये लाइंस मिटा दो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब क्या है, मान लो कि हाँ ठीक है, मान लो कि ये वाली जो लाइन है ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, मान लो ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री यहाँ पे लिख लो 15 डिग्री, क्लियर? तो 15 डिग्री 1 आवर में 15 डिग्री मूव करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा, ठीक है। तो इस जगह पे जो भी देश होंगे वहाँ पे क्या होगा? 1 घंटा पहले का टाइम होगा, और अगर यही 15 डिग्री यहाँ होता, 0 है तो इधर भी तो 15, 30, 180 तक आ रहा है, 180 तक यहाँ भी तो आ रहा है, 180 इधर भी आ रहा है, तो इधर 15 डिग्री होगा, तो ये अगर मान लो यहाँ पे 12 बज रहा है, दिन के 12 बज रहे, तो यहाँ पे 1 बजेगा, और यहाँ पे क्या बजेगा? 11। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे हम लोग पहले चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे 1 बजेगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ तो पहले ही इधर ईस्ट वालों कंट्रीज में तो पहले ही टाइम हो रहा है, समझ रहे हो ना? ये देश आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 12 बजा तो यहाँ पे 1 बजेगा, और इधर क्या बजेगा?
11 बजे का। ठीक वैसे ही जितने घंटे की दूरी होती है, जितनी डिग्रीज होती हैं, ये तो 1 आवर यानी कि 60, बेटा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 60 मिनट में 15 डिग्री चल रही है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी? 4 डिग्री चलेगी, 4 डिग्री। तो अगर 1-1 मिनट का इस तरह से निकालना चाहते हो, अगर 4 डिग्री में कोई है तो कैसे निकलेगा? तो ये हमेशा याद रखना कि 1 आवर में 15 डिग्री अर्थ का रोटेशन होता है। समझ में आ रहा है आपको? बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इशिता बेटा अच्छे से क्लियर हुआ? यस और नो एकदम जेन्युइनली आंसर करो। कितने बच्चों को अच्छा एक काम करती हूँ, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर करूंगी लॉन्गिट्यूड और टाइम को लेकर, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हाँ यस ओके यस उमंग। मैम अफगानिस्तान हमसे वाला पीछे चल रहा है मैम, जैसे हमारे इंडिया में 6 AM होगा तो वहाँ अफगानिस्तान में 5 AM होगा। अच्छा अब ये कह रहे हो, जैसे इसने एक क्वेश्चन ला दिया, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अब देखो अफगानिस्तान की बात कर रहा है और इंडिया की बात कर रहा है। मान लो इंडिया का अभी हमारा टाइम हो रहा है 9:30, सपोज अभी 9:20 हो रहा है, 9:30 लेके चलो, ये 9 मान लो कि अभी हमारे देश में 9 बज रहा है। तो अफगानिस्तान में अब देखो कि अफगानिस्तान का लोकेशन कहाँ पे है। अब जैसे मान लो ये अर्थ है और हम लोग यहाँ पे हैं, तो अफगानिस्तान थोड़ा सा और इधर आ रहा है, थोड़ा और इधर आ रहा है, और हम इधर है, ये इधर इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, तो इनके और इतने के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है आपको ये देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? जितने डिग्री का डिफरेंस होगा उतने टाइम से निकालेंगे। हमेशा याद रखना कि 1 आवर में 15 डिग्री रोटेशन हो रहा है अर्थ का। तो देखो कि कितने डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, उसके हिसाब से निकालोगे। इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना चाहिए, है ना बेटा? आपको नहीं लगता कुछ एग्जांपल्स हम लोग को करना चाहिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना? तो अभी UT1 है, तो एक काम करते हैं, UT1 वाले ये जो है ना, देखो 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 ये काम करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में कि हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले UT1 की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, जितना बताएंगे उतना तो समझ में आया होगा, यस और नो? लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रैक्टिकल सुनो, लिसन एवरीवन, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जिसका आप लोग रियल लाइफ से जोड़ के देखोगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्या करेंगे ना कि UT1 थोड़ा सा हो जाए तो हमें टाइम मिलेगा, तो उस टाइम अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके Indian Standard Time. This is the question. Yes ma'am, because हाँ देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन को कोई समझा सकता है क्लास में, क्लास 6 में एनीवन? हाँ Why do we have Indian? Listen student, listen सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन बनो। Why do we have Indian Standard Time? कोई एक बच्चा कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करे कि वो आंसर कर सकता है। सोहन ने हाथ खड़ा किया, मैं एक मौका देती हूँ। सोहन बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करना। यस मैम, जैसे हमारा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है तो उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं। यस तो हमारे कंट्री में जब ट्रेन पासिंग करते हैं तो उनको डिफिकल्ट होता है कि किस जगह पे कितना टाइम हो रहा है, और अगर ऐसा होगा तो फिर ट्रेन दूसरा ट्रेन आके उसी पे ही मिल जाएगा। वेरी गुड। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे भारत सरकार ने एक लाइन दिया है जो इंडिया से बीच से पास करती है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड है। वो इसी से जो ट्रेन पास करती थी और जो भी टाइम का डिफिकल्टी होती थी सब वो सॉल्व हो सकती है। वेरी गुड सोहन, गुड एक्सप्लेनेशन बेटा, सच में खुश कर दिए मुझे।
अब 1 मिनट ये भी समझिए, बस 1 मिनट टाइम लूंगी आपका, उसके बाद हम ओवर करेंगे। रुको। अब जैसे मान लो सोहन ने कहा कि जैसे मान लो ये अपना देश है, ये अपना देश है प्यारा भारत, और ये तो थोड़ा उल्टा हो गया। अभी आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों को मैप बनाने नहीं आता होगा ना, ठीक है, सीख लो बेटा। मेरी तो ड्राइंग एकदम ही खराब है, लेकिन फिर हाँ तो अभी क्या है, वो ये तो उल्टा ही बन गया, पूरा ही उल्टा बन गया। एक काम करते हैं, रफली स्केच बनाती हूँ, उससे ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने इंडिया में उस सोहन ने ये कहा कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या किया गया, चलो मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखो बेटा, जो ये वाला कॉर्नर है और जो ये वाला कॉर्नर है लॉन्गिट्यूड का, ये वाला जो कॉर्नर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे देखना 68 डिग्री समथिंग लिखा होगा और यहाँ पे 90 डिग्री समथिंग लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, तो क्या किया गया कि भाई, और हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं कि 1 आवर में 15 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए 2 आवर लेना पड़ेगा ना। 30 डिग्री में यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा गुजरात इधर और अरुणाचल के इधर में। तब क्या हुआ, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर मान लो इधर 5 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ पे 7 बजेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तब हमने चूज कर लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि यहाँ से बीचों बीच जाती है, ठीक है। और वहाँ उसको लेने के बाद से हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स का जो 30 डिग्री वाला गैप था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से इक्वली टाइम जोन को ले लिया, तो पूरे देश में एक टाइम मिल गया। सो ये है पूरा मामला, इसको पिक्चर से आप अच्छे से समझा सकते हो। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच बेटा। एक चीज़ और, अच्छा लगा आपसे ये समझ के कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो।